जो माइलॉट ईडब्ल्यूएस कोटा था उसे 2 इयर्स। सुनो देखो, अगर वो कार्व आउट करना पड़ेगा तो दैट इज ए लीगल इशू। माइलॉट बस जो गवर्नमेंट का रिप्लाई है उसमें लिखा हुआ है कि पेज नंबर 16 उसमें लिखा हुआ है कि अगर ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन देना है प्राइवेट कॉलेजेस में तो सीट्स बढ़ानी पड़ेगी, बट सीट्स 2 साल के अंदर बढ़ जानी चाहिए। 2019 के ऑर्डर में लिखा हुआ है। अभी 5 साल हो गए 2024, सीट्स नहीं बढ़ी। मतलब प्राइवेट कॉलेज को सीट्स बढ़ाने के लिए चाहिए फंड्स, क्योंकि 1 से 2 सीट्स नहीं बढ़ानी है, 15 से 20 या 50 सीट्स बढ़ानी है। फंड्स के लिए वो लोग रुके हुए हैं और गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रही ईडब्ल्यूएस कोटा। और जीएस कोटा लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 5%। उसमें ऐसा कोई रूल नहीं था कि सीट्स बढ़ने के बाद जीएस कोटा अप्रूव होगा। जितनी सीट्स थी उन पर जीएस कोटा एप्लीकेबल हुआ। वैसे ही ईडब्ल्यूएस में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें रेस्ट्रिक्शन सिर्फ यही है कि विद इन दी जब रिजर्वेशन देंगे तो एससी एसटी ओबीसी की सीट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, उनकी सीट्स कम नहीं होनी चाहिए। The counseling process is over. There are several decisions of the Honorable Supreme Court that the admission cannot be granted except by way of the counseling, ओके। and the No, but guidelines he's- needs to be adhered to. So adhering to the No, but guidelines, he said it is up to 5th December. My lord, What is his main issue? his main issue is that the EWS, the lack of the absence of EWS implementation in the private medical colleges. Oh, It is available in the government medical colleges, but not in the private medical colleges. That is his main grievance. EWS. Yes. Now EWS implementation has been, it was introduced in the year 2019. Subsequently, in the rules, it was amended in 2021. Right from 2021, it is being carried out the way it is being implemented today. But this process has been followed for the past 4 years now. Right. But he did not challenge this prior to the counseling process. He challenges it after the counseling process is over. He participates in the counseling process. He is unsuccessful, and then he checks the Gazette notification which says that the EWS category is implemented only for the government colleges and not the private colleges. Unfortunately, he does not get a seat in the government college under the EWS quota. And therefore, now he has come and challenged this rule, saying that it is discriminatory and is not applicable to the private medical colleges. He challenged the rule. Now he has challenged the rule. Your reply there? My reply, Your Lordship, we filed it today. Oh, yes. What is your reply? This is what you said. My first contention in paragraph 4 is that the entire process is over by 5th of November 2024. And several decisions of the Honorable Supreme Court where the time schedule prescribed in respect of the medical admissions has to be adhered to. My second submission is that having participated in the counseling process, he did not raise any objection prior to the counseling process or at the time of participating in the NEET PG, NEET UG. तो मिस्टर अथर्व, ये तो आपने इसको चैलेंज किया है, तो इनका अमेंडमेंट है। my lord. अमेंडमेंट अगर आपने चैलेंज किया है तो दैट विल टेक इट्स ओन कोर्स। So in that case, they have to file a reply and then it will be decided. Maybe benefited to other students, not to you, because you already participated in the process, not succeeded. Then you raise this issue, and as per them, from the last 4 years, they are giving the reservation to the EWS categories. My lord, may I? Yes. मेरे my lord 92.95 परसेंटाइल थे नीट में। 92.95 परसेंटाइल नीट में। My lord, as a MBBS aspirant, it was not my responsibility to read the gazette notification to challenge all those things. मेरे 93 परसेंटाइल थे अप्रॉक्स। मैं मेरिटोरियस था। अगर इसके बाद भी मैं एक सीट प्राइवेट कॉलेज में सिक्योर नहीं कर सकता, तो अगर इतनी मेरिट में आने के बाद भी एक सीट मैंने प्राइवेट कॉलेज में सिक्योर नहीं कर पाई, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है my lord। कहीं ना कहीं सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर इसका एक कंक्लूजन बताऊं, जिस कैटेगरी का मैं था उसका बेनिफिट मुझे मिला नहीं। अगर मुझे अनरिजर्व के अगेंस्ट सीट अलॉट हो सकती थी तो उसमें मैं ओपन हूं ना, मैं गवर्नमेंट स्कूल कोटा में ना पीडर कोई कोटा नहीं। उसके अगेंस्ट इन्होंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया कि यूआर ओपन में और कम सीट्स हुई। वो पूरा मैटर ब्रीफ करूंगा my lord। तो मुझे ना तो ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिला, ना यूआर ओपन में मुझे EWS को तो आपने अप्लाई नहीं किया।
माय लॉर्ड आपने EWS में अप्लाई किया? ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया था। So you applied in इस पे आपसे जो नीचे मेरिट थी उनको एडमिशन मिला है? माय लॉर्ड मिला है। नॉन EWS में? हाँ, नॉन ईडब्ल्यूएस। हाँ माय लॉर्ड, जैसे मैं अगर गवर्नमेंट स्कूल कोटा की बात करूँ, 10 सीट जानी थी एक कॉलेज में, 13 मेडिकल कॉलेज हैं, 11-12 ऐसी सीट्स गई हैं, कहीं 10 गई हैं, कहीं 11-12 गई हैं। ऐसे बच्चों को 216, 240 ऐसे नंबर पे सीट अलॉट हुई है। एनआरआई की बात करूँ 170 पे अलॉट हुआ है, मेरा तो 530 था। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पंजाब का एक मैटर गया था रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ एनआरआई कोटा, वेयर सुप्रीम, मैं उसको बाद में करूँगा मेरा। बट जैसा अभी कहा इन्होंने कि कट ऑफ डेट जा चुके हैं 5 नवंबर, इसके लिए एस कृष्णा श्रद्धा में डायरेक्ट गाइडलाइंस है सिर्फ एमबीबीएस के लिए। दी 9th पैरा, under exceptional circumstances if the court finds that there is no fault attributable to the candidate and the candidate has pursued his legal right expeditiously without any delay, and there is fault only on the part of authorities, and there is apparent breach of rules and regulation as well as the related principles in the process of grant of admission which would violate the right of equality and equal treatment, the court under exceptional circumstances and rarest of rare cases direct the admission in the same year by directing to increase the seats. However, it should not be more than 1 or 2 seats, and such admission can be ordered within reasonable time, that is within 1 month of the cutoff date. ये जजमेंट देना। First case is S. Krishna Sratha. ये The last page of that judgment, my lord, 9th para. Here it is written that 1 seat can be allotted if there is the fault of authorities and the candidate is meritorious. Now, my lord, I have to prove that the authorities उन्होंने कुछ रूल्स ब्रेक किए। पहला, my lord, जो रिप्लाई है गवर्नमेंट का उसमें ये लिखा है the page 16, my lord. The applicability of this amendment act 2019 for the increase of annual permanent seat strength need to be implemented from the academic year following the commencement of the amendment act. But ये जो अनरिजर्व कैटेगरी के आपसे नीचे कोई एडमिशन हुआ? URGS में एडमिशन हुआ। उसका चार्ट दिखाओ, कौन आपसे नीचे? my lord, पिटीशन में वो पेज 69, my lord. 9 पेज 69 में सुख सागर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जो लिस्ट है, URGS में my lord 523 से 418, यूआर के कौन से है इसमें? URGS में my lord 489 से 523 के बीच अलॉटमेंट हुए हैं। Four- सीट अलॉटमेंट ज्यादा था गिवन परसेंटेज से। 3 सीट्स जानी थी जीएस में, 4 सीट गई हैं, तो लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट है my lord 489 पर। पर जीएस स्टार्टिंग हुई थी 523 पे और एडमिशन हुआ 489 पर। एनआरआई my lord 484 पर स्टार्ट हुआ, 170 पर खत्म हुआ। आपके कितने हैं? 530। 530। द चैलेंज इज दैट my lord कि 22 सीट्स जानी थी, 23 गई, 10 सीट जानी थी, 11 और 12 गई, 3 की जगह 4 गई। अगर my lord मैं एक बार सीट डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं विच इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एमसीसी, उसमें यूआरजीएस में स्टार्टिंग हुआ था 523 पर, क्लोजिंग हुआ 489 पर। जीएस है लेकिन गवर्नमेंट Yes, government यूआरजीएस इसमें एक सीट एक्स्ट्रा दी है। government school quota. कोटा, आप गवर्नमेंट स्कूल कोटा की my lord एक सीट एक्स्ट्रा गई है, ये मैं कह रहा हूँ। एक सीट एक्स्ट्रा जैसे रिजर्वेशन 0.5 में आता है 6.5 आता है तो वो 6 seats ना 6 होगा। my lord 6.3 सीट्स आ रहा था, उसे 7 किया, 6.3 सीट्स को 7 किया। एक बार बस my lord पेज 60 में देखेंगे जो एमसीसी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल इंडिया कोटा के लिए, वहां पर भी 250 सीट्स थी। 15% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 22.5 सीट्स या 37.5 सीट होती हैं 250 और 150 वाले कॉलेजेस में। 37.5 को 37 राउंड ऑफ किया। ऐसा नहीं कि कहीं पे 37 फिर 38 उसको बैलेंस करने के लिए, नहीं, क्योंकि कॉलेजेस को जो रिजर्वेशन का अलॉटमेंट हुआ है वो मैक्सिमम उतना ही कर सकते हैं, 15.2 15.3 नहीं कर सकते। चाहे मैं अगर ईडब्ल्यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन में जो 15(6) इंसर्ट हुआ है लिखा हुआ है मैक्सिमम 10%, उसे 10.2 10.5 नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे फॉलो किया।
37 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जहाँ 250 कॉलेज हैं वहाँ 15% के अकॉर्डिंग 37, जहाँ 150 सीट्स हैं 15% के अकॉर्डिंग 22। कहीं भी ऐसा गलत डिस्ट्रीब्यूशन ऑल इंडिया कोटा में नहीं है, स्टेट ने गलत कर दिया, कहीं पर 6, कहीं पर 7, कहीं पर 8। तो मेरी युवा कैटेगरी में शिक्षा में कट ऑफ किया है 558 पर, माय लॉर्ड, आपके 530 है। EWS कैटेगरी में this is what I am saying, my lord, they are treating unequals as equals, which is violation of article 14. कोटा कार्व आउट नहीं हुआ। my lord, जो my lord EWS कोटा था उसे 2 years, So देखो अगर वो carve out करना पड़ेगा तो that is a legal issue. my lord, बस जो गवर्नमेंट का रिप्लाई है उसमें लिखा हुआ है कि पेज नंबर 16, उसमें लिखा हुआ है कि अगर EWS के लिए रिजर्वेशन देना है प्राइवेट कॉलेजेस में तो सीट्स बढ़ानी पड़ेगी, बट सीट्स 2 साल के अंदर बढ़ जानी चाहिए। 2019 के ऑर्डर में लिखा हुआ है, अभी 5 साल हो गए 2024, सीट्स नहीं बढ़ी। मतलब प्राइवेट कॉलेज को सीट्स बढ़ाने के लिए चाहिए फंड्स, क्योंकि 1 से 2 सीट्स नहीं बढ़ानी है, 15 से 20 या 50 सीट्स बढ़ानी है। फंड्स के लिए वो लोग रुके हुए हैं और गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रही है EWS कोटा। और GS कोटा लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 5%, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं था कि सीट्स बढ़ने के बाद GS कोटा अप्रूव होगा, जितनी सीट्स थी उन पर GS कोटा एप्लीकेबल हुआ। वैसे ही EWS में भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें रेस्ट्रिक्शन सिर्फ यही है कि विद इन दी जब रिजर्वेशन देंगे तो SC ST OBC की सीट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, उनकी सीट्स कम नहीं होनी चाहिए। नहीं हो रही है मैम लॉर्ड, सिर्फ अनरिजर्व की सीट्स में से 10% EWS हो जा रहा है। पिटीशन में मैंने वो टेबल भी मेंशन किया है, सिर्फ उसमें एक ही क्लॉज है कि SC ST OBC का रिजर्वेशन कम नहीं होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। 862 सीट्स जा रही थी विदाउट EWS, विद EWS 187 सीट्स EWS को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जनहित अभियान में यही कहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फर्स्ट आर बाउंड टू प्रोवाइड EWS रिजर्वेशन एंड द सीट्स अलॉटेड टू देम वुड बी प्रोवाइडेड अंडर UR कैटेगरी, मतलब UR से निकाल के जो उन्हें 50 जा रहा है उसकी जगह 40 जाएगा और 10% EWS को मिलेगा। और 5 साल से पेंडिंग है ये, तो जब हमें हालात ये नजर आ रहे हैं कि आपको लाई करवाएंगे। the clause 6B of article 15 is the clause 6B of article 15 is the exact replica। ये सब लीगल इशू है जो आप उठा रहे हैं, तो लीगल इशू में फिर वो उस तरह डिसाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन इज वेदर यू विल गेट द बर्थ और नॉट, Hello? वेदर यू विल गेट सीट और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। वो तो जब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का क्या है करना, फिर वो ये देखा जाएगा सीट बढ़ेगी तो वो इंस्पेक्शन होगा, इंक्वायरी होगी वेदर सीट टू बी इंक्रीज नॉट इंक्रीज। वो तो EWS के लिए पूरी सीट्स बढ़ाने के लिए मैडम, अभी तो एक सीट के लिए इंटरिम रिलीफ है मेरा, एक सीट के लिए, क्योंकि अगर आज नहीं मिलती है तो नेक्स्ट ईयरिंग पे तो मैडम जो पिटीशन का मेन रिलीफ है उसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा। नहीं वो यू आर राइट, वो तो एक ओपिनियन आएगी कोर्ट की कि वेदर यू आर राइट और दे आर राइट। यस मैडम, वो आएगा। इफ यू आर राइट then the direction can be issued to the other side. मैडम If you are not, then end of the matter. मैडम एक चीज और है, जो क्लॉज 6 है आर्टिकल 15 का, वो 15(5) का एग्जैक्ट रेप्लिका है, बस जो वर्ड EWS है उसे रिप्लेस कर दिया, मतलब EWS ने रिप्लेस कर दिया वर्ड SC और ST को, OBC को। तो मैडम SC ST OBC को अंडर आर्टिकल 15(5) फुल बेनिफिट है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, उसको प्रमति में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, अभी जनहित अभियान में भी सुप्रीम कोर्ट ने EWS का रिजर्वेशन अपहेल्ड किया। तो फिर किस बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा, जब GS को लास्ट ईयर विदाउट इंक्रीजिंग द सीट्स रिजर्वेशन दे दिया है, तो EWS को भी UR के अगेंस्ट दे सकते हैं। चलो बिल्कुल, a hard reserve for judgment. हाँ?